morning. Today we are going to start most important MCQ from chapter 1 class 10. बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि MCQ से रिलेटेड भी वीडियो बनना चाहिए. So here I am with video of MCQ. We are going to cover here approximately 40 to 50 MCQs which will cover all types of MCQ questions asked in the board. So let us start. बहुत easy level से डिफ़िकल्ट लेवल तक के सारे टाइप के क्वेश्चंस. डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगी, सारे ही इजी हैं. हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन will be given to you. So let us start. Like first question is, which of the following is not irrational? So very simple. From where to start the thinking process? Yes, irrational number होते क्या है जिनमें रूट आ रही है. ठीक है. So here you can check if I am using the identity of a minus b whole square, middle term 2ab, तो b term तो हमारा रूट में है, so it cannot be rational. Okay. Second, अगेन 2ab टर्म जो है वो हमारा रूट में आएगा और ये रूट कैन नॉट बी कैंसल्ड, सो इट कैन नॉट बी माई आंसर. यस, हियर a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5. सो 2 minus 5 will be -3. Yes, this is my answer. This is not a irrational number, it is a rational number. So C is my correct option. Second देखिए, the product of rational and irrational number is dash. अब rational or irrational, take any of the example like 2 root 2. What will be the product? Irrational. 3 root 5. What is the product? Irrational. So B is the correct answer. Then question number C, it is, if P and Q are two consecutive natural number, consecutive एक के बाद एक आने वाले natural numbers, right? So कौन से हैं? एक के बाद एक कोई भी ले लीजिए आप, like 2 और 3. तो 2 और 3 का HCF क्या होगा? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? No, nothing is common. तो क्या होगा जब कोई कॉमन नंबर ना आ रहा हो तो HCF is always 1. Remember, consecutive natural numbers are always co-prime. Co-prime number होते हैं. Co-prime मतलब अगर वो composite number भी हों तो भी उनके बीच कोई भी common factor नहीं होता. Like 24, 25. Both are composite numbers but there is no common factor between two. ठीक है. तो always it is 1. Next question. If the prime factorization of a natural number n is 2 raised to power 4, 3 raised to power 4, 5 raised to power 3 and 11, the number of consecutive zeros कितनी आएंगी लगातार उसमें in n? तो देखिए zeros हमारी कब आती हैं? जब 2 into 5 मतलब 10 की पावर समथिंग होगा, है ना. तो इसमें देखिए 10 की पावर आ रही है. हाँ जी आ रही है. कितनी बार आ रही है? ओनली 3 टाइम. क्यों? 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है. तो हम कौन सी मिनिमम वाली लेंगे? क्योंकि 2 तो एक कम पड़ जाएगा, सॉरी 5 एक कम पड़ जाएगा अगर हम पावर 4 लेते हैं, है ना. सो वी विल टेक 2 into 5 raised to power 3. इट विल बिकम 1000 और 1000 में कितनी जीरोस हैं? 3 zeros आते हैं. सो C is the correct option. Question number 5. If product of two numbers is 3691 and their LCM is 3691, find HCF. So we are going to use the formula that LCM into HCF is equal to product of the numbers. So if I need to find HCF, LCM is given over there. LCM will go here in the denominator. So product of numbers, that is 3691, divided by LCM, that is 3691. So what I am getting HCF as 1. So B is the correct option. Next, HCF of the smallest prime number and smallest composite number. Now what is the smallest prime number? It is 2 and the smallest composite number is 4.
So what will be HCF? Here you can see one number, that is 4, is the multiple of 2. So what is the HCF? Smallest number always. So 2 is my correct answer. And if here they would have asked you LCM, अगर LCM पूछा होता आपसे तो आपका आंसर होता 4, right? Next question is LCM of smallest prime number. Smallest prime number again is 2 and smallest odd composite number. Odd भी चाहिए और composite भी चाहिए. तो देखो odd number कहाँ से start हो रहे हैं? 3, yes, not a composite number, prime number है. फिर 5 prime number है, 7 prime number है, 9, yes, it is the smallest composite number. So 2 and 9, ठीक है. और 2 और 9 का LCM क्या होगा? ये देखो they are co-prime numbers और co-prime numbers में LCM क्या होता है? Product of these numbers. तो 2 और 9 का product क्या आएगा? Yes, very correct, it is 18. So D is my correct option over here, right? Question number 8. Given that LCM of these two numbers is 182, then what will be the HCF? Here you can use both the formula. LCM into HCF is equal to product of number. ये भी यूज कर सकते हो. ऐसे आ जाएगा 91 into 26 product of numbers upon में LCM. You will get the HCF. या फिर और भी शानदार तरीके से कर सकते हो. कैसे? जैसे HCF का हमने शॉर्टकट सीखा हुआ है. 91 माइनस 26, इसका डिफरेंस आएगा 65. वो बड़ा नंबर है, तो जब डिफरेंस बड़ा होता है और हमारे पास छोटा नंबर अवेलेबल है तो छोटा नंबर लो 26. अब देखो 26 को क्या हम HCF ले सकते हैं? नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 26 इवन नंबर है एंड इट कैन नॉट डिवाइड द ऑड नंबर. तो क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में? टेक द फैक्टर्स. तो 26 के फैक्टर लिए हमने 13 into 2. सो 13 इज द HCF ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, क्योंकि देखो इसमें आपको ऑलवेज ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं. यू आर नॉट आस्क्ड टू डू द कैलकुलेशन, सो यू कैन गो फॉर द शॉर्टकट. पर यही क्वेश्चन आप अगर आपसे सॉल्व करने के लिए पूछा जाए तब आप ये शॉर्टकट नहीं अपना सकते. देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज your marks will be deducted. So please take care of this. ये MCQ question है, इसलिए हम यहाँ शॉर्टकट पे मूव हो सकते हैं and it will save your lots of time. हाँ, अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, you can check your answer like this way whether it is correct or not. Next, if A and B are two positive integers such that A is equal to 7B. अब A क्या है? 7B के इक्वल है. द HCF ऑफ A and B. तो A को आप 7B लिख सकते हो. HCF ऑफ B और 7B क्या होगा? B is the common factor. So obviously option C is my correct answer. Question number 10 देखिए. The ratio between LCM and HCF of 3, 15 and 6. So सबसे पहले HCF कैसे निकालते हैं हम? या तो डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस या स्मॉलेस्ट नंबर. तो दोनों ही 3 आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब हमारा HCF हो गया 3. अब LCM कैसे निकालते हैं? LCM में बड़ा नंबर देखो 15 है ना. तो चेक करो 15 में 3, यस 3 के टेबल में 15 आ रहा है, पर 6 के टेबल में ना. तो ऐसे में क्या करते हैं हम? इसको डबल कर देते हैं. तो 15 into 2 क्या हो जाएगा? 30. अब चेक करो क्या 6 के टेबल में आ रहा है? 3 के टेबल में चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव चेक 15. ठीक है, यस 30 इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 6 है ना. तो इसका मतलब है 30 मेरा LCM हो गया. तो 30 और 3 की रेशियो फाइंड आउट कर लो. इट इज 10:1. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. द नंबर पाई इज, यस पाई कौन सा नंबर है? नेचुरल, रैशनल, इरैशनल या दोनों. तो इसमें देखिए पाई इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर. अब आप बोलोगे मैम फिर 22/7. नहीं, 22/7 इज रैशनल नंबर. क्यों भाई? वैल्यू तो पाई और पाई की होती है 22/7, बट बेटा दैट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दैट वी हैव टेकन. सो whenever we are talking about rational and irrational,
तो पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल नंबर। देखो इजी है ना सारे क्वेश्चंस, बस थिंकिंग प्रोसेस और उनको फास्ट कैसे करना है यही हमें देखना होता है। लुक हियर, इफ HCF ऑफ 16 एंड y, ये दो नंबर हैं, इनका HCF आ गया 8 और इन्हीं दो नंबर का HCF LCM आ गया 48। ये सिंपल यूज करो फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स में से मुझे एक नंबर पता है, दूसरा नहीं पता है। इसका मतलब कैसे लिखूंगी मैं, 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 48 LCM इंटू 8। ठीक है, तो y जो है वो वेरिएबल है, 16 मेरा कहाँ यहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जाते ही 16 3 और 8 इंटू 3 इज 24। सो 24 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive natural number is always, कोई भी दो नंबर ले लो, एनी टू, 1 इंटू 2 लो, देखो क्या आ रहा है प्रोडक्ट 2। 2 क्या है, इवन नंबर। 2 इंटू 3 ले लो, व्हाट इज द प्रोडक्ट 6। 6 क्या है, इवन नंबर। 3 इंटू 4 ले लो, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आने वाले 12। 12 क्या है, इवन नंबर। सो कंक्लूजन इज दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू consecutive natural number is always इवन नंबर। ठीक है, और कैसे होते हैं वो, को प्राइम नंबर्स, है ना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 97/2 इंटू 5 यस। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल एक्सपेंशन पूछा हुआ है ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर, अगर 2 और 5 दिए हैं डिनोमिनेटर में, तो बड़ी वाली पावर किसकी है, 5 की। कितनी है, 4। तो इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर होगा वो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होने वाला है, 4। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। डेसिमल, सेम टाइप, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल बी। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे फैक्टर किए हुए थे, है ना, बट हियर वी आर डूइंग द फैक्टर। अगर फैक्टर ना हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, वी विल डू द फैक्टर्स, फाइंड आउट इट इज 5⁻³ इंटू 2। अब देखिए 5 और 2 में किसकी पावर बड़ी है, 5। कितनी है, 3। सो व्हाट इज माय करेक्ट आंसर, यस, the correct answer is C option, that is it will terminate after 3 decimal places, right? Question number 16 is the least number that is divisible by all the numbers 1 to 5। तो least word आते ही क्या समझ में आया, LCM। और LCM कौन से नंबर का पता करना है, 1 to 5 बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 भी इंक्लूड हो और 5 भी इंक्लूड हो। तो 1 2 3 4 5 का एलसीएम पता कर लीजिए, यू विल गेट इट 60 ओवर। सो बी इज माय करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब लार्जेस्ट वर्ड आते ही क्या आया, HCF। ठीक है, विच डिवाइड 60 एंड 75 लीविंग रिमाइंडर। अब यहाँ रिमाइंडर भी बच रहा है, तो सबसे पहला काम है रिमाइंडर को माइनस करना। तो 60 - 8 मतलब फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाला रिमाइंडर, सेकेंड वाले से सेकेंड वाला। तो 60 - 8 विल बी 52 एंड 75 - 10 विल बी 65। इसका मतलब इन दोनों का HCF निकालना है। अब HCF के लिए बहुत सिंपल है, 65 - 52 कर दो, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स क्या आएगा, यस 13 से चेक करो, दोनों डिवाइड हो रहे हैं नंबर, यस। सो 13 इज माई HCF। कितना सिंपल है देखो। सेम क्वेश्चन इज हियर, 3 farmers having 490 kg, 588 and 882 kg of wheat respectively. Find the maximum। maximum वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, यू हैव टू फाइंड HCF, है ना। अब बोलोगे मैम एक नंबर का क्वेश्चन, इतने नंबर, देखो डिजिट्स तो इतने बड़े बड़े दिए नंबर इनके, है ना। नो नीड, हमें तो शॉर्टकट पता है कैसे करना है, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, एनी वे
ठीक है। लेकिन हमारी वाइज डिसीजन क्या है इसमें कि छोटे वाले डिफरेंस का नंबर देखो, तो छोटा डिफरेंस तो इसमें आएगा, है ना। सो व्हाट वी विल डू, 588 माइनस 490 क्या आया 98। अब चेक करो 98 क्या इन सब नंबर को डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। कैसे पता चला, हाउ हैव यू चेक। सबसे पहली बात तो यह है कि चेक करना मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सबसे छोटा यही नंबर है ना। तो मेरे पास मतलब कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। सो 98 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि HCF छोटा नंबर ही आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं चेक करना चाहूँ कर सकती हूँ। देखो 49 का डबल 98 होता है, तो ये कैंसिल होगा ना, यस। यहाँ से यस, इसमें से भी कैंसिल होगा, क्यों, लास्ट डिजिट आप चेक कर सकते हो। लास्ट डिजिट क्या है इसका, 8 है ना। और 8 की टेबल में 8 कब आता है, 8 इंटू 6 करके, है ना। तो 8 6 अगर 98 इंटू 6 करूँगी मैं, मुझे डेफिनेटली यही मिलने वाला है। कैसे पता चला, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। 100 इंटू 6 करूँगी तो 600 होता है। अब ये 600 से 2 ही तो कम है, तो 6 का डबल 12 कम हो गया, राइट। 882, अब 2 कब आता है 8 की टेबल में, लास्ट में 8 है और यहाँ लास्ट का डिजिट 2 है। मतलब हमें स्मार्ट थिंकिंग भी करनी होती है। वैसे ये चेक करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है स्टिल। तो 8 इंटू 9 है ना, तो मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है। सो 98 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में है, there are 312, 260 and 156 students in class 9, 10, 11. 10, 11, 12. Buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum. Maximum का मतलब HCF. तो इन नंबर्स का HCF, yes, very easy. सबसे पहली बात क्या करनी है, डिफरेंस। तो सबसे पास वाले नंबर देखो कौन से लग रहे हैं, these two, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस पता कर लो, like this. 312 minus 260, it is 52. अब चेक करिए, 52 is there, yes, 52 is there, it means this is my HCF. Question number 22, sorry, question number 20. लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे भी वर्ड लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ये सब वर्ड्स क्या डिनोट कर रहे हैं, HCF पता करना है। नंबर दैट विल डिवाइड दिस नंबर लिविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर भी बच रहा है, तो सबसे पहला काम है रिमाइंडर को माइनस करिए। 398 माइनस 7 391 हो गया, 436 माइनस 11 425 हो गया, 542 माइनस 15 ये हो गया। अब इन तीनों का HCF निकालना है हमें, कैसे, वही माइनस कर लो, यस। सो 425 माइनस 391 34 आ गया। 34 ऑप्शन तो है, पर 34 मेरा इवन नंबर है और ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ऑड नंबर्स, तो ये ऑड नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 34। तो क्या है फैक्टर्स, 17 और 2। तो 17 देखिए है यहाँ, यस। तो 17 इज माई करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। LCM of the given number x and y where y is the multiple of x। तो आपको पता है जहाँ भी एक नंबर दूसरे का मल्टीपल होता है तो HCF कौन सा होता है, छोटा नंबर, और LCM होता है बड़ा। तो LCM पूछा है y, this number is multiple, so B is the correct option. Question number 22, which number is divisible by 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है आपको, क्या करते हैं हम, जो भी नंबर हैं उनको बांट देते हैं, ऑड प्लेस और इवन। जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे है, ऑड प्लेस हो गई, सेकंड प्लेस इवन प्लेस हो गई, थर्ड ऑड हो गई, फोर्थ इवन हो गई, है ना। तो क्या करना है, इवन वाली प्लेसेस के नंबर को अलग से ऐड करिए और ऑड वाली अलग से। जैसे यहाँ पे 6 + 5 कितना हो गया, 11, और इवन वाली में कितना हो गया, 1 + 1 2। तो 11 में से 2 माइनस करो, क्या आएगा, 9। 9 कम्स इन द टेबल ऑफ 11, नो। तो या तो हमारा 0 हो जाए डिफरेंस, या फिर मल्टीपल ऑफ 11, मतलब ऐसा नंबर जो 11 के टेबल में आता हो। तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। मूव टू सेकेंड।
यस, ऑड नंबर पे 4 और 2 कितने हो गए 6, इवन नंबर पे 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 माइनस 6 क्या आएगा 0. सो बी इज माई करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, we have done 22 questions in this video, and wait for the next video for the remaining questions. Thank you, have a nice day, and if you have any kind of doubts, any kind of problems, queries, please feel free to ask in the comment box. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember